डॉक्टर श्यामवीर सिंह पर हार्दिक अभिनंदन है। और आज का जो हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 को हम कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 5.3 कंटिन्यू। सो लेट्स स्टार्ट। We are starting from 8th sum now. 8th sum. Find the sum of first 51 terms. कि फर्स्ट 51 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो n आपको दे दिया 51, whose second and third term are 14 and 8. Second term 14, third term is equal to 18 sorry। तो सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स निकालने हैं। सेकंड और थर्ड टर्म आपको गिवन है। Now A2 is equal to 14. It means A plus D is equal to 14. A plus n minus 1D होता था ना, तो 2 minus 1 1, that is A plus D is equal to 14. This is first equation. Also A3 is equal to 18. It means A plus 2D is equal to 18. This is second equation. So subtracting first from second on subtracting first from second, कि फर्स्ट को सेकंड में से सब्सट्रैक्ट करने पे a plus 2d is equal to 18 and a plus d is equal to 14. माइनस माइनस माइनस, a से आपका ये कैंसिल हो गया। 2d माइनस d, तो d 18 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। तो आपकी d की वैल्यू आ गई 4। नाउ सब्स्टिट्यूट d is equal to 4 in any one of the equation. Put d is equal to 4 in first. Put d is equal to 4 in first. फर्स्ट में हमने d को 4 रख दिया, तो a plus 4 is equal to 14, which implies a is equal to 14 minus 4, that is equal to 10. Now you have value of a, you have value of d and n as 51 आपको फाइंड आउट करना था। तो S51 Sn का फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। सबसे पहले वी नो Sn जो होता है दैट इज इक्वल टू n by 2 2a plus n minus 1 d. So S51 is equal to 51 by 2 into 2। a की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 10 plus n minus 1, that is 51 minus 1 into d की वैल्यू 4। तो it comes out 51 by 2, 2 10 जा 20 plus 51 minus 1 50 into 4, 50 into 4 200। So that is equal to 51 by 2 into 220। 2 से 220 कैंसिल किया 110, that is equal to, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो it comes out 0 का 0, 11 1 जा 11, 1 कैरी 11 5 जा 55 plus 1 56, तो 5610। This is your answer. Now next sum, ninth sum.
Ninth sum says if the sum of 7 terms of AP is 49, sum of 7 terms means S7 is equal to 49 and that of 11 terms और 11 terms का जो है it means S11 17 terms, sorry, not 11 but 17. 17 terms means S17 is equal to 289. Find the sum of n terms. तो आपसे कहता है Sn की वैल्यू क्या होगी. Now S7 is equal to 49. Now S7 is equal to 49. So 7 by 2 into 2a plus n minus 1d. N minus 1 means 7 minus 1. So 7 minus 1 d is equal to 49. 7 से 7 7 जा 49, 2 उधर गया तो ये आपका आ गया 2a plus 6d is equal to 14. This is your first equation. Now second one, S17 to 89 था. S17 is equal to 289. Applying the formula 17 by 2 into 2a plus 17 minus 1d is equal to 289. 17 से कट किया 17 2 जा 34. So 2a plus 16d is equal to 34. This is our second equation. Now solving these two equations and finding the value of a and d. So on subtracting first from second, on subtracting first from second, तो सेकंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सेकंड आपकी कितनी है 2a plus 16d. तो नाउ 2a plus 16d is equal to 14 and 2a plus 6d, 2a plus 6d, ये 2a plus 16d is equal to 34. This is our 34 और ये हमारा है 14. ये था 34 माइनस माइनस माइनस. सो 2a से 2a आपका कैंसिल हो गया और 34 माइनस 14 इट कम्स आउट 20 इज इक्वल टू 16 माइनस 6 10d. 10 से 20 कैंसिल किया हमने तो d इज इक्वल टू 2 आ गया. नाउ d इज इक्वल टू 2 which implies d is equal to 2. Put d is equal to 2 in any one. Suppose फर्स्ट में रख देते हैं हम. Put d is equal to 2 in first. तो फर्स्ट में अगर हम d is equal to 2 रखेंगे, फर्स्ट थी 2a plus 6d, तो 2a plus 6 into 2
is equal to 14, which implies 2a is equal to 14 minus 12, which implies 2a is equal to 14 minus 12, 2. So a is equal to 1. Now we get a is equal to 1 and d is equal to 2, and we have to find out the value of Sn. So Sn की वैल्यू यही साइड में ही फाइंड आउट कर देते हैं. Now Sn is equal to n upon 2 2a plus n minus 1 d. So n by 2 into 2a, 2 into a की वैल्यू कितनी फाइंड आउट की थी 1 प्लस n minus 1 into d की वैल्यू 2. So it comes out n by 2 into 2 plus 2n minus 2. 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा, तो n by 2 into 2n, n by 2 into 2n, 2 से 2 कैंसिल, तो it comes out to be n square. तो आपकी Sn की जो वैल्यू आई वो आपकी n square आ गई. On further solving, tanh sum show that a1, a2, a3, an form an AP where an is given आपको nth टर्म गिवन है किसी सीक्वेंस का 3 plus 4n. सबसे पहले कहता है शो कि भाई ये एपी फॉर्म कर रहा है, तो पहले सीक्वेंस फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग. n इज इक्वल टू 1 पे a1 की वैल्यू कितनी आ गई 3 प्लस 4 इंटू 1, तो 3 plus 4 7. Similarly a2 is equal to 3 plus 4 into 2, 4 to the 8 plus 3 11. a3 is equal to 3 plus 4 into 3 15 dash dash dash. सिमिलरली आगे कंटिन्यू में चलता रहेगा, तो लास्ट में an माइनस 1 आएगा आपका, an माइनस 1, तो 3 प्लस 4 n माइनस 1, तो 3 प्लस 4n माइनस 4, इट कम्स आउट 3 प्लस 4n माइनस 4, विच इज इक्वल टू 4n माइनस 1. और an माइनस 1 यदि कांस्टेंट आ जाए तो सीक्वेंस एपी में होगा. नाउ वी फाइंड आउट an माइनस 1. हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी हैं, या सिंपल सा वे है इसमें, जब n वाले दे रखे हों तो डायरेक्ट आप an माइनस 1 फाइंड आउट करें. an माइनस an माइनस 1, an की वैल्यू कितनी थी, वो थी आपकी 3 प्लस 4n, तो 3 प्लस 4n माइनस an माइनस 1, 4n माइनस 1. On solving it, 3 plus 4n which is equal to ये d भी होता था, माइनस 4n प्लस 1, 4n से 4n कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू 4 विच इज कांस्टेंट. सिंस d इज कांस्टेंट, आल्सो a2 माइनस a1 भी यदि हम फाइंड आउट करें तो कितना था हमारा 11 माइनस 7. सेकेंड टर्म 11 आया था ना,
और फर्स्ट टर्म हमारा 7 आया था 3 + 4, तो वो भी कितना है 4 ही है। A3 - A2 फाइंड आउट करें तो 15 - 11 that is also equal to 4. Since D is same, so given sequence is an AP. Since D is same, for all consecutive terms, so given sequence is an AP. So given sequence is an AP. अब यदि गिवन सीक्वेंस एपी में है तो हमसे क्या फाइंड कहता है इसके बाद, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। भाई डी हमारे पास है, A1 हमने फाइंड आउट कर ही रखा है। A1 की वैल्यू कितनी थी 7, D4, तो S15 निकालना है हमें। नाउ S15 is equal to 15/2 2A 2 into 7 plus n minus 1 15 minus 1 into D की वैल्यू 4. So it comes out 15/2 2 into 7 14 plus 15 minus 1 14 14 4 जा 56. तो 15/2 into 60, sorry 56 plus 14 70. तो 15/2 into 70, 2 से 70 को कट करेंगे इट कम्स आउट 35. तो 15 into 35, so 15 5 जा 75, 7 15 3 जा 45 plus 7 52. So it comes out 525. Similarly, second part of this sum can be done. Now we move towards next sum, 11th sum. If the sum of first n terms of AP is 4n minus n square, now Sn is equal to 4n minus n square. This is given to you. What is the first term? कहता है फर्स्ट टर्म क्या होगा, मीन्स A1 की वैल्यू क्या होगी। What is the sum of first two terms? Sum of first two terms. Sum of first two terms means S2. तो S2 की वैल्यू क्या होगी। What is the second term? और A2 की वैल्यू क्या होगी। Now solution, first of all we find S1. A1 जो होगा आपका दैट इज इक्वल टू S1, फर्स्ट टर्म के इक्वल होगी क्योंकि फर्स्ट टर्म का सम फर्स्ट टर्म के ही इक्वल होगा। तो S1 4 into 1 minus 1 का स्क्वायर which is equal to 4 minus 1 that is equal to 3. So your A1 is equal to S1, 3 वैल्यू आ गई आपकी। Now S2, तो S2 जो होगा आपका दैट इज इक्वल टू 4 into 2 minus 2 का स्क्वायर which is equal to 8 minus 4 that is equal to 4. ये S2 की वैल्यू आ गई which implies A1 plus A2 is equal to 4. A1 plus A2 is equal to 4.
तो इस तरह से आपकी A1 प्लस A2 की वैल्यू 4 आ गई। हमसे क्या कहता है, A2 फाइंड आउट करो। A1 की वैल्यू हमें पता है 3 है भाई। S2 जो होगा फर्स्ट टू टर्म्स का सम है ना, इसलिए हमने इसे लिखा है A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 4। नाउ A1 की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 प्लस A2 इज इक्वल टू 4 और A2 की वैल्यू आपकी आ गई 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट टर्म था 3 आ गया, और जो हमारा सेकंड टर्म है सेकंड टर्म वो 1 आ गया हमारा। उसके बाद हमसे पूछा, वो फर्स्ट टू टर्म्स पूछे थे वो हमने फाइंड आउट कर ही दिए हैं। इसके बाद थर्ड टर्म, सेकंड टर्म पूछा था, कहता है सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड टेंथ एंड nth टर्म। तो थर्ड टर्म भी हमें निकालना है, थर्ड, टेंथ और nth टर्म an, ये सारी चीजें इस सम में हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, नाउ वी हैव a1 a2, so first of all we find d is equal to a2 minus a1। a2 की वैल्यू 1 माइनस a1 3, so d is equal to minus 2। now what we have to find, a3। when Sn is given, we have formula to find An directly. We know that instead of using large calculations, we know that Sn is equal to, sorry, An is equal to Sn minus Sn minus 1, which implies A3 is equal to S3 minus S3 minus 1। S3 की वैल्यू यदि हम सीक्वेंस से देखें, जो nth टर्म दे रखा था, तो उससे यदि मैं S3 निकालना चाहूं तो वो क्या होगी हमारी, 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, दैट इज 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू आ गई S3 की। माइनस S3 माइनस 1 कितना था, S2 की वैल्यू हमने अभी ऊपर फाइंड आउट की थी 4, तो हम S2 की वैल्यू यहाँ डायरेक्ट 4 अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं यूजिंग अबव, कि भाई ऊपर हमने जो वैल्यू फाइंड आउट की थी उसका यूज कर लिया। तो नाउ इट 4 इंटू 3 12 माइनस 9 माइनस 4, 12 minus 9 that is 3 minus 4 which is equal to minus 1। so हमारी A3 की जो वैल्यू आ गई वो minus 1 आ गई। now S10, similarly find S10, sorry A10 फाइंड आउट करना है हमें। तो A10 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, Sn माइनस Sn माइनस 1, तो S10 माइनस S9। S10 की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो 4 इंटू n के प्लेस पे क्या रखेंगे, 10 माइनस 10 का स्क्वायर, S9 की अगर हम बात करें
तो सिमिलरली S9 जो होगा 4 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वेयर, 4 इंटू 10 40 माइनस 100 माइनस 4 9 जा 36 प्लस 81, तो 40 माइनस 36 4 माइनस 100 प्लस 81 माइनस 19, तो it comes out to be minus 15. Now लास्ट हमसे कह रहा था भाई an की वैल्यू निकालें, so an is equal to similarly an that is equal to Sn minus Sn minus 1. Sn की जो वैल्यू थी that is 4n plus n square minus 4 into n minus 1 plus n minus 1 whole square, which is equal to 4n plus n square minus 4n प्लस 4, भाई माइनस 4 आता माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. On further solving, it comes out 4n plus n square minus 4n plus 4 minus n square minus 1 प्लस 2n. और इसे जब फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4n से 4n हमारा कैंसिल हो गया, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारी वैल्यू आ गई यहां से एक बार चेक कर लेते हैं. Sn हमारा था 4n प्लस n स्क्वायर, सॉरी माइनस n स्क्वायर गिवन था, तो 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4 इंटू n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 होल स्क्वायर. तो ये आपका माइनस n स्क्वायर आ जाएगा, दिस इज माइनस n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 4, और यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस टेप प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आएगा it comes out plus n square plus 1 minus 2n, और ये आपका माइनस n स्क्वायर था, so now n square plus 1 minus 2n. On further solving, 4n minus n square minus 4n plus 4 plus n square plus 1 minus 2n. So 4n से 4n कैंसिल हो गया हमारा, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो गया, and it comes out 5 minus 2n. 5 minus 2n. This is our answer.
Now we move towards next sum. 12th sum. Twelfth sum. Twelfth sum says find the sum of the first 40 positive integers divisible by 6. First 40 positive integers divisible by 6. तो 6 से divisible पहले 40, तो number divisible by 6 are numbers divisible by 6 are 6, 12, 18, 24 dash 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 40 terms. तो ऐसे 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो होंगे, तो नंबर डिविजिबल बाय 6 जो हो गया आपके हो गए, क्योंकि 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का है, उसने सम निकालना है उनका. नाउ a इज इक्वल टू 6, d is equal to a2 minus a1, which is equal to 12 minus 6, that is equal to 6. d आ गया आपके पास, a आपके पास है, n आपके पास ऑलरेडी है 40, n की जो वैल्यू है वो है आपके पास 40. So put n is equal to 40 as 40 is equal to 40 by 2 n by 2. आईडीज अपने आप साइड में आप लिखिएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं अब, क्योंकि बहुत सारे सम हमने ऐसे कर लिए. n by 2 2a, so 2 into 6 plus n minus 1, 40 minus 1, d की वैल्यू 6, so 40 by 2 that is 20, 2 into 6 12, 40 minus 1 39, तो 39 into 6 वो आएगा आपका 39 into 6, which is equal to 20 into 12 plus 234 plus 234, तो which is equal to 20 into 234 plus 12 246 246. और जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का 0, 2 6 जा 12, 1 2 4 जा 8 plus 1 9, 2 2 जा 4, 4920. Now next sum, thirteenth sum. Find the sum of first 15 multiples of 8. तो first 15 multiples of 8 कितने होंगे? 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 डैश 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 15 टर्म्स हैं. तो as 15 फाइंड आउट करना है. Now do yourself as we did 12th sum. This is do yourself. जैसे हमने अभी प्रीवियस सम किया 12th सम, ऐसी 13th सम आप अपने आप करेंगे. Now next 14th. Sum. Find the sum of odd numbers between 0 and 50. तो 0 और 50 के बीच ऑड नंबर फाइंड आउट करने हैं, हमें उनका सम फाइंड आउट करना है. हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ ऑड नंबर्स
odd numbers between 0 and 50. So first of all, odd number between 0 and 50, odd numbers between 0 and 50 are 1, 3, 5, 7, dash dash dash, लास्ट टर्म 49। हम जानते हैं जितने इवन, अब आपके इसमें a की वैल्यू जो हो गई दैट इज 1, d की वैल्यू a2 माइनस a1, तो 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2। ऑड नंबर थे सारे के सारे, d इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट, सभी टर्म्स के लिए d इज सेम, सिंस d is same, d is same for all consecutive terms, so sequence is an AP, so sequence is an AP, तो इसलिए सीक्वेंस जो है आपका एपी में है। इससे पहले भी जब आपने ये सम किया था तो यहाँ केवल नंबर डिविजिबल 6 दे रखा था, तो d इज इक्वल टू 6 आप लिख देना कांस्टेंट। यहाँ भी आपको बताना चाहिए कि भाई ये एपी में है, तभी आप एपी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, 6 कांस्टेंट। सो सीक्वेंस इज इन एपी, जो सीक्वेंस होगा इज इन एपी में होगा वो, तब आप एपी का फार्मूला लगा सकते हैं। सिमिलरली इन दिस सम पहले हमने कह दिया डी इज सेम फॉर ऑल consecutive terms, so sequence is an AP. Now apply the formula of AP. What we have to find out, an we have given, सम निकालना है इन सभी का, तो an हमारे पास है 49। Now an is equal to 49, an की वैल्यू a plus n minus 1d, तो a plus n minus 1d is equal to 49. On further solving, a is equal to 1, so 1 plus n minus 1 d2 is equal to 49. Now 1 को सेकेंड साइड ले गए, so n minus 1 into 2 is equal to 49 minus 1, so n minus 1 is equal to 48 upon 2, 24। so n की जो वैल्यू आ गई हमारी, now n is equal to 24 plus 1, n is equal to 25। तो 25 टर्म्स जो होंगे वो आपके ऑड होंगे। तो वैसे भी हम जानते हैं, जो मैं पहले कह रहा था कि भाई जितने टर्म्स हमारे इवन होते हैं उतने ही ऑड होते हैं। यदि 50 टर्म्स की हम बात करें तो उसमें आधे इवन होंगे, आधे ऑड होंगे, तो इसलिए 25 टर्म्स आपके ऑड होंगे और 25 इवन्स होंगे। नाउ Sn which is equal to n by 2 a plus an, तो that is equal to 25 by 2 a की वैल्यू आपकी 1 प्लस an that is 49।
तो विच इज इक्वल टू 25/2 इंटू 50। 2 से 50 को कैंसिल किया, दैट इज 25, विच इज इक्वल टू 625। So this is your answer. Now next question, 15th. Sum. A contract on construction job specifies penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: rupees 200 for first day, rupees 250 for second day, rupees 300 for third day, etc. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than for preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work 30 days. यदि 30 days उसने वर्क को डिले कर दिया तो उसे कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी? तो सीक्वेंस ऑफ पेनल्टी, जो सीक्वेंस है ऑफ पेनल्टी इज, आपको कहता है फर्स्ट डे कितनी पेनल्टी पे करनी है? 200, सेकेंड डे 250, थर्ड डे फिर 50 ऐड करके 300 डैश डैश डैश, और 30 डेज की बात कर रहा है तो ऐसे 30 टर्म्स होंगे। सिंस इंक्रीमेंट इज कांस्टेंट, सिंस इंक्रीमेंट in penalty is constant, so sequence form an AP. Sequence form an AP in which A is equal to your 200, your A is equal to 200, D is equal to 50, क्योंकि कांस्टेंट इंक्रीमेंट हो रहा था 50 आपका, और हम फाइंड आउट भी करके दिखा सकते हैं A2 - A1 to 50 - 200 50, N is equal to 30। तो टोटल 30 डेज में उसे कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी? दैट इज इक्वल टू S30। सो S30 इज इक्वल टू N/2, दैट इज 30/2 इंटू 2A, 2 इंटू 200 प्लस N-1 which is 30 - 1 into D. So 30/2, this is 15, which is equal to 15, 2 into 200 that is 400 plus 30 - 1 into D। D के प्लेस पे हम 50 सब्स्टिट्यूट कर सकते थे क्योंकि D की वैल्यू 50 थी, into 50, तो 400 30 - 1 29 into 50, 29 into 50, which is equal to 15 into 400 plus 0 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 plus 4 14, which is equal to 15 into 14 plus 4 1850, that is equal to 15 0 15, 15 5 जा 75, 7 15 8 जा 120 plus 7 127, 12 15 1 जा 15 plus 12 27, तो 27,750
इज योर आंसर कि इतने रुपए उसे पेनल्टी के रूप में देने पड़ेंगे। नाउ नेक्स्ट सम 16th सम, a sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school। तो टोटल दे रखा है आपको, टोटल रुपीस जो देने हैं 700 हैं, कैश प्राइज के रूप में देने हैं। इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, कि हर प्राइस जो है वो उससे पहले वाले से 20 लेस होना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट प्राइस, सपोज लेट फर्स्ट प्राइस $20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, इसके पहले वाले प्राइस से 20 लेस होना चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस, तो सभी प्राइजेस की वैल्यू फाइंड आउट करो। लेट फर्स्ट प्राइस इज ए, तो सेकंड प्राइस कितना होगा, 20 लेस होना चाहिए सेकंड प्राइस, दैट इज इक्वल टू ए माइनस 20। थर्ड प्राइस which is equal to a minus 20 minus 20 a minus 40 dash 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 and so on and so on। Since d is same, since d is same, so sequence form an AP, तो इसलिए जो सीक्वेंस है आपका वो AP फॉर्म करेगा। अगर AP फॉर्म करता है तो आपके पास 7 प्राइजेस देने थे, S7 700 है, S7 is equal to 700 which is equal to 2A plus 7 minus n by 2 7 by 2 2A plus 7 minus 1 इंटू डी की वैल्यू 20 लेस है तो d माइनस 20 आ जाएगा। भाई a2 माइनस a1 करेंगे तो d माइनस 20 लेस है तो नेगेटिव आएगा, विच इज इक्वल टू 700। 7 से 100 कैंसिल हो गया आपका, सो 2a 7 माइनस 1 6 इंटू माइनस 20 तो माइनस 120 इज इक्वल टू ये 2 आपका राइट हैंड साइड में जाएगा तो 100 इंटू 2 हो जाएगा, दैट इज 200 विच इम्प्लाइज 2a इज इक्वल टू 200 प्लस 120 और a इज इक्वल टू 320 अपॉन 2। तो a की वैल्यू जो आपकी आ जाएगी, फिर से देखें 7 जो आपके 7 टर्म है, S7 आपका 700 था, 700 हमने फॉर्मूला अप्लाई किया n बाय 2 7 बाय 2 2a प्लस n माइनस 1, जो d की वैल्यू होगी हमारी यहाँ पे d कितना होगा भाई, a माइनस 20 माइनस a तो माइनस 20 आएगा। ठीक है, तो हमने इस फॉर्मूले को आगे अप्लाई किया, 7 से 700 को कैंसिल किया, 100 पे गया, 100 इंटू 2 200 हो गया और ये आपका 2a माइनस 7 माइनस 1 6 और माइनस 20 तो माइनस 20 इंटू 6 माइनस 120 तो 200 प्लस 120 तो a आपका जो आ गया, फर्स्ट प्राइस जो आपका आ गया यहाँ पे 160। सो फर्स्ट प्राइस that is a is equal to 160 which implies a is equal to 160। तो पहला प्राइस आपका 160 आ गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ प्राइस, फर्स्ट प्राइस अगर 160 तो
तो रिमेनिंग कितने होंगे? तो हेंस रिमेनिंग प्राइसेस आर सेकंड प्राइस which is equal to 160 minus 20, 140. Similarly, third price 140 minus 20, which is equal to 120. Fourth price 120 minus 20, which is equal to 100. Now fifth price 100 minus 20, which is equal to 80. Similarly, sixth price which is equal to 80 minus 20, 60. Seventh price 60 minus 20 is equal to 40. तो इस तरीके से बाकी के रिमेनिंग प्राइसेस आपके होंगे. नाउ नेक्स्ट सम 17th सम. 17th, 16th is also important, 17th is also most important. रिमेनिंग जो भी सम है इस एक्सरसाइज में सारे इंपॉर्टेंट है. In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be same as class in which they are studying. That is, section of class first will plant first one tree, class second will plant two tree and so on. तो 12th तक कहता है कि there are three sections of each class. How many trees will be planted? तो कितने ट्री आपके प्लांटेड होंगे? ओके, नाउ ट्रीज planted by first class. तो 1 into 3, भाई 3 सेक्शन है और जो क्लास है वो उतने ही पेड़ लगाएगी. यदि फर्स्ट है तो एक पेड़ लगाएगी, तो 3 हो गए. सिमिलरली ट्रीज प्लांटेड बाय सेकेंड क्लास, that is equal to 2 into 3, which is equal to 6. Similarly, trees planted by third class, तो 3 into 3, which is equal to 9. Dash dash. Similarly, इसी तरीके से trees planted by 12th class, trees planted by 12th class, तो 3 into 12, 36. क्योंकि हर एक क्लास के 3 सेक्शन है. Now sequence of trees planted is 3, 6, 9, dash 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 36. Clearly the AP is an AP as D is constant, as D is equal to 3 is constant throughout.
So throughout the sequence d is constant. Now how many total trees planted we have to find out. A is equal to 3, n is equal to 12, d is equal to 3, and an is equal to a12 is equal to 36. So Sn, total number of trees planted, total trees planted, S12 is equal to n by 2 a plus an. तो 12 से 2 6 जा 12, तो 6 into 3 plus 36, तो 6 into 39, which is equal to 234. 6 9 जा 54, 6 3 जा 18 plus 5 234. तो आपका 234 is the answer. Now next sum. Next sum, 18th. A spiral is made up of successive semicircles with centers alternatively at A and B. इस तरीके से आपको दे रखा है, यहाँ सेंटर पॉइंट ए लिया हुआ है, एक डायग्राम है, दिस इज सेंटर पॉइंट ए, इसके बाद ये पॉइंट बी लिया, यहाँ से सर्कल ड्रॉ करते चले गए, सेमी सर्कल्स ड्रॉ किए गए, एंड सो ऑन. इस तरीके से स्पाइरल है, इस तरह से सेमी सर्कल ड्रॉ किए गए हैं. सेंटर ए से जो सर्कल ड्रॉ किया गया R1 रेडियस ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, radius of first semicircle R1 is equal to 0.5. Similarly, R2 is equal to 1 centimeter, R3 1.5, R3 is equal to 1.5 centimeter, and so on. And so on. Together, what is the total length of such a spiral made up of 13 semicircles? कि 13 semicircles से फॉर्म हुआ है, तो लेंथ कितनी होगी? By length of first semicircle, length of first semicircle, that is equal to pi r1 by 2 pi r होती थी सरकमफ्रेंस पूरे सर्कल की, तो सेमी सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होगी वो कितनी होगी? पाई आर. इट मींस पाई r1. तो पाई r1 मींस r1 कितना आपका 0.5, इट कम्स आउट 0.5 पाई. सिमिलरली लेंथ ऑफ सेकंड सेमी सर्कल which is equal to pi r2, r2 1 है तो 1 pi, and similarly
लेंथ ऑफ थर्ड सेमीसर्कल, लेंथ ऑफ थर्ड सेमीसर्कल, तो पाई r3, r3 कितना है 1.5 पाई, and so on dash 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 so on. Now length of semicircle, sequence of length of semicircle form an AP, sequence of length of semicircle is what is 0.5 pi comma pi comma 1.5 pi dash 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 up to 13 terms. तो ये आपका AP फॉर्म करते हैं up to 13 terms, forms an AP, forms an AP since D is same, D is equal to 0.5, same for same throughout the sequence. तो D सेम है, S13 हमें फाइंड आउट करना है. नाउ S13 फाइंड आउट कर लेते हैं. S13 13 by 2 2a, so 2 into में 0.5 pi plus 13 minus 1 into D which is equal to 0.5 pi आएगा क्योंकि 1.5 plus 0.5 पाई तभी आपका होगा ना 2 पाई, तो आपका 0.5 पाई आया वो. नाउ 13 by 2, ये 2 5 या 10, तो पाई प्लस 13 माइनस 1 12, और 12 को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से तो 12 5 जा 16 6 पाई, तो it comes out 13 into 7 pi by 2 which is equal to 91 pi by 2, 91 pi upon 2. तो 91 into pi 22 by 7 into 2, 2 से 11, 7 से 13, तो 13 into 11 which is equal to 13 1 जा 13 1, 13 1 जा 13 plus 1 143, तो ये आपका आ गया 143 सेंटीमीटर. थैंक यू, धन्यवाद. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. जय हिंद, जय भारत.